Ladies and gentlemen, this is Muhammad Afan, and we welcome you to a new episode of Let's Talk by IBA today. We're featuring a special episode today by startups at IBA and by IBA students. We have today some special guests from some special startups at IBA, starting with Neha. Her startup, Neha, can you introduce your startup? Hello everyone, my name is Neha Tariq and I started a home-based baking business called Cookie Crumble back in April of 2020. The products that we offer mainly revolve around cookies and brownies, but our specialty is our luxury gift packaging as well. Okay, Faizan and Arsal from Traveling Mate. So, can you introduce? I think most of IBA students might know of you guys because you do a special duo at IBA. So, what you have with us. Yeah, so me and Faizan started Traveling Mate back in when we were in our fourth semester in 2018 Jan, and since then we assume that Traveling Mate is a household name for many IBA students because they use Traveling Mate for their commute to and from IBA. So yeah, we cater around 100 students on a regular basis to and from IBA. So that is about Traveling Mate. And we have our last guest is Minahil Imad. Minahil, can you tell us about your startup? Hello guys, my name is Minahil and I am the co-founder at Eternity Planners. We are an event planning and crafting service business which specializes in personalized and customized events and different gifts, etc. Right, startups तो आप लोग ने बना लिए. Moving forward, आगे क्या था जब when you founded all your startups, what's the next level क्या था? मतलब कि how do you think कि इसको हम next level पे कैसे लेकर आएंगे? नेहा? I felt that having a strong social media presence was important for my startup specifically because when I started off, it was literally the start of the pandemic, at least here in Pakistan. So lockdown start हुआ and right after this I started and उसके हिसाब से I had to make a very strong social media impression in front of people and all. So that was like the very next thing there I had to Agreed, do. right? Social media plays an important role in these startups built in the 21st century in general. उसके Yeah. बगैर अगर कोई startup है तो फिर and any company in general, startup or non-startup in general, every company now needs to be on social media because Yeah. that's where the audience is. Plus like that was my selling platform, so my attention to social media had to be 110% rather than a business which is not directly catering to people who are on social media. Like 100% my market was from there. Nice. So talking about from Traveling Mate's experience, you guys were basically building this service for IBA students in general. So how did it all came about, and what do you think was the next level step for you? नेक्स्ट स्टेप इन व्हाट थिंग लाइक आगे इम्प्रूवमेंट के हवाले से या नेक्स्ट स्टेप के Next step in terms of your taking your startup to the next level. ओके सो in 2019 in December we thought कि अब like IBA की मार्केट को हमने काफी cater कर लिया so we have to move forward like in other universities we have to target other universities as well so we did some working and we did some research कि अच्छा हमारे लिए क्या viable options हैं right तो हमने हबीब को टारगेट किया था, हमने डाउ को टारगेट किया था, हमने ज़ैबिस को टारगेट किया था बट द मेजर बैरियर वाज कि एक साथ उस वक्त हमारे लिए इतनी इन्वेस्टमेंट निकालना एक सॉर्ट ऑफ मसला था. चलो वो तो एक साइड मसला था लेकिन द मेन थिंग वाज कि हम IBA में ट्रैवलिंग मेट को संभाल रहे थे तो उसके बाद साथ साथ हमारी वो यूनिवर्सिटी भी चल रही थी तो वो सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था तो हमने सोचा था कि चलो जब ग्रेजुएट होंगे तो इंशाल्लाह फिर उसके बाद इस चीज़ को देखेंगे लेकिन फिर COVID happened. But I'm talking about your startup. It's basically an event business. It's basically totally stuck by COVID as well. So, but the doctor, let's talk about when you started it. What did you think कि हम इसको next level पे कैसे लेकर जाएंगे? Like it's not something very unique kind of. It's an event business basically. अच्छा, so when we started back in May 2019. तो उस वक्त तो नामो निशान नहीं था कोविड का और पता नहीं था कि ये भी कुछ आ जाएगा
और वी हैड नो आइडिया कि आगे हमारा इंट्रोडक्शन फेज ऑफ द बिजनेस लाइफ साइकिल ही चल रहा था कि ये सब शुरू हो गया. तो वी कंप्लीटेड आवर 1 year in the middle of COVID. तो we were still in the process of establishing a name. तो हमारी अभी भी सबसे पहली प्रायोरिटी यही है कि establish ourselves in the market, because given it's already so saturated, we want कि people get to know us. And like Neha mentioned, we're going to just focus on social media right now. Abhi everything, our growth has been completely organic. So now we are looking towards paid advertising and marketing so that we can get ourselves known. Talking about any business, like कोई भी business start करने के लिए you need something to start with it. I think पहले सबके लिए एक passion होगा, एक idea होगा, एक problem होगी जो उसे solve करनी है. तो मतलब नेहा, what was your problem कि मुझे ये problem solve करनी है? Like, are you asking in terms of the problem my business faced, or if I'm catering to a problem that's there I'm in talking the about market? catering to a certain problem, certain market. What was your thing कि मुझे ये करना है? Well, mainly it was because I started off and I kept my options very limited in my products, especially. So I saw that either it was way too commercial, or it was at a point where it was homemade, but it was so expensive for everybody that they, in the end, had to opt for the latter, the commercial option, which wasn't what people really wanted. But again, we are a third world country. Not everybody is a rich person here who would pay 30K for cakes instead of 3,000 rupees. So I wanted to come in between these two options to give something that's of good quality but of the rates that the commercial vendors are providing. Agreed. Like and talking about traveling made instance, कराची का सबसे बड़ा इशू ट्रैवलिंग ही है. तो सबसे बड़ा इशू ट्रैफिक, ट्रैवलिंग और एक ऐसा सिस्टम जहाँ लोग कंफर्टेबल हो या पेरेंट्स आर फीलिंग सिक्योर्ड कि अपने बच्चों को हम यहाँ भेज सके एंड वी फील दैट काइंड ऑफ. तो फिर लाइक लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम सेट इन जनरल. जो personally जो what I felt was before starting Traveling Mate, the thought of Traveling Mate emerged जहाँ से हुआ था वो यही था कि IBA के बाहर वो स्टैंडिंग, वही जो हमारा सबका सुट्टा ब्रेक हम कहते हैं जिसको IBA के बाहर, तो मैं वही कर रहा था. एंड मैंने एक वैन देखी, लिटरली एक हाई रूफ, जिसमें 6 से 7 लड़कियां ऑलरेडी बैठी हुई थी, और वो एक लड़की अपने वैन ड्राइवर से बहस कर रही थी कि आप 8वीं लड़की इस वैन में कैसे बैठा सकते हैं, बिकॉज ही वॉज फोर्सिंग हर टू सिट इन दैट वैन, और वो एक के ऊपर एक. तो मुझे नजर आ रहा था, तो उस चीज के ऊपर मैंने एक चीज बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली दिमाग में थी. जब फिर मैंने एक ऐसे ही अपनी दोस्त से पूछा कि तुम ट्रैवलिंग के हाउ मच डू यू पे, तो जब मुझे पता चला दैट ओके इस तरह से पॉइंट इतने चार्ज कर रहा है और वो एक सर्टेन पॉइंट से आपको पिक करता है और वहीं पे आपको ड्रॉप करता है, देन उस हाई रूफ वाले अगर मैंने रेट लिए तो वो भी मुझे लगा कि वैल्यू ऑफ मनी अच्छी नहीं है. सो देन दिस थॉट इमर्ज दैट ओके आई कैन प्रोवाइड समथिंग जो बहुत ज्यादा, जो टू एन एक्सटेंट लेजर भी दे रहा है एंड अलॉन्ग विद दैट उससे वैल्यू ऑफ मनी भी पूरी हो रही है ऑफ द कस्टमर्स. अपार्ट फ्रॉम दैट द ऑब्वियसली द पॉइंट्स यू मेंशन्ड रिगार्डिंग सिक्योरिटी, बहुत ज्यादा हमें आए दिन हमें ये केसेस पता चलते हैं कि हरासमेंट हो रही है. पेरेंट्स को अगर एक लड़की घर से बाहर निकल रही है, उनके दिमाग में एक बेसिक थॉट आएगा कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पहुंच गई या फिर मेरी बेटी घर क्यों नहीं पहुंची. तो उस पूरे डिलेमा से निकालना और एक ऐसी अमाउंट चार्ज करना जो उनके लिए फीजिबल हो, जिसमें उनको क्वालिटी भी मिले. सो दैट वाज बेसिकली द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैवलिंग मेट, एंड I personally think that we have been providing that, or we have been satisfying them. That is why after 3 years we have created our goodwill to such an extent. Right. Talking about the idea and the problem set of any business, Neha, starting with you, कि पहले order complete करने के लिए what एक investment required होती है. So what was that basic investment that you really needed to start that queue going? Well, it wasn't a lot because firstly it was home based, secondly it was my hobby, so I already had the utensils and the basics that you need to bake something. So zyada se zyada all I needed to get was some few basic ingredients which I probably didn't have at home. So that's about it for the first order. फिर उसके बाद once I started earning, I started reusing that amount and reinvesting it to get more stock and all of that. That's great to hear. ट्रैवलिंग में आई गेस ट्रैवलिंग तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, एक कैश इंटेंसिव बिजनेस है, तभी सिंध गवर्नमेंट हम पे खर्चा नहीं कर रही, डिप्राइव्ड है हम सब.
more or less, you know, आपका एक ये ना एक सर्विस है basically, you know, the van, it's that उसकी fundamental cost है, you know, तो starting with that cost, you know, कि how much अगर आज कोई start कर रहा है अपना कोई ऐसा business, how much will it cost him? अच्छा, it depends कि जब हमने स्टार्ट किया था तो we started with 3 vans. फिर उसके बाद हमारा था कि हम फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे, तो एक सेमेस्टर के बाद फिर हमने मजीद 2 वैन्स और करी, फिर उसके बाद मजीद 1 वैन और करी। तो अगर विद फुल कैपेसिटी के लिए कम से कम कोई 5 to 6 वैन्स आपको चाहिए मिनिमम, तो इट वुड कॉस्ट लाइक अराउंड 50 to 60 lakhs मिनिमम। That's a very high number in general. तो आपके पास वो रनिंग कैश भी होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स वो सारी चीजें ऑपरेटिंग जो आपको एक्सपेंसेस है जो सारे। मनाइल, how much did it cost you इवेंट बेसिस में? सो हमारी कॉस्ट इतनी नहीं थी बिकॉज वी वर ऑल्सो ऑनलाइन बेस्ड और हमारी कोई वेयर हाउसिंग नहीं है एंड वी हैव आवर वेंडर जिनसे हमारी अच्छी डीलिंग्स वगैरह हैं, तो वो हमें उनकी वेयर हाउसिंग और उनकी रेंटल बेसिस के ऊपर हम काम कर लेते हैं और एडवांस आता है क्लाइंट से। तो भाई one point I would like to make over here, जो आपने सवाल पूछा ना फाइनेंस का, ये एक नो डाउट जो सबसे ज्यादा मसला जो आजकल के यूथ को आता है या किसी को भी स्टार्ट करना है बिजनेस, उसको ये आदत है हाउ डू आई मैनेज द कॉस्ट। जैसे अभी फैलान ने कहा कि हमें एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको अराउंड 50 to 60 लाख रुपीस इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमने फॉर एग्जांपल 3 महीने से स्टार्ट किया था, तो वी हैड टू इन्वेस्ट लाइक अराउंड 2.5 मिलियन। तो उसका ऐसे देखें, जो भी इन्होंने जो बात की हमारे जो बिजनेस जिस सेक्टर में वी आर ऑपरेटिंग इन, दैट इज बेसिकली सर्विस सेक्टर। तो ट्रैवलिंग मेड का भी है, तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यही अमाउंट में किसी रेस्टोरेंट में जाता वो बनाता, तो वो मेरी एक ऐसी अमाउंट थी जो वापस नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मेरे पास जो अपने एसेट्स हैं वो सेफ हैं कि वो लिक्विड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल इफ माय बिजनेस वोंट रन, देन आल्सो कि मैं उसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इनटू लिक्विड फॉर्म। तो फॉर दैट थिंग जो भी जिसको स्टार्ट करना है वो इससे डिमोटिवेट ना हो फैलान की बात से भी कि भाई इसने 50 लाख मैं तो बड़ा हाई हो गया कि 50-60 लाख देख के ये है कि आप हमेशा सेव ऑप्शन खेलो। अगर लिमिटेड आपके पास इन्वेस्टमेंट है, जो कि ऑब्वियसली होती है, हर किसी के पास भी एक पूल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, आप ऐसी चीजों पे जाओ कि जो बाद में आपको वो वापस दे सके। ये नहीं कि आप एक रेस्टोरेंट की तरफ एम कर रहे हो कि फाइन डाइनिंग मुझे बनाना है, तो 30 से 40 लाख रुपए तो मेरी खाली उसकी इंटीरियर वगैरह में खर्च हो जाए, जो कि वापस ना आएगा। तो उससे बेहतर है आप ऐसी चीजों पे जाओ जो कि आपको बिजनेस ना भी चले तो आपको रिटर्न मिल सके उसको। I'm reconsidering the future investments I have to make. रेस्टोरेंट हो जाता है। Well, I don't know. I want to expand. Obviously, I don't want it to be home based all along, but I have to take the next step. So अब वही टेंशन है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी, कितनी चाहिए, and again liquid form में कन्वर्ट हो सकती है नहीं। होम बेस्ड पे भी जाना है, सो व्हाई डोंट यू टेक मोटिवेशन फ्रॉम बॉम्बे बेकरी? हैदराबाद में जो है वो एक होम बेस्ड बेकरी है और वो इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है। Yeah, but like इन्वेस्टमेंट तो चाहिए। बेसिकली मेरा पॉइंट है कि जरूर नहीं आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपके पर्सनली वे आउट है टू नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। उसके अलावा यू कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू कैन थिंक ऑफ Agreed. मतलब agreed. Yeah, you know, effectively invest कैसे करना है कि bare minimum should be Right. there. So when I started Livelihood, I started with 0. अब 200 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। Just think on that. तो जो भी आज देख रहे हैं ना in this regard कि you know you start something कि you know you build upon this, you know start with something small। और मुझे पता था कि कैश तो था ही नहीं लिटरली। मेरे ख्याल से एक माइक भी उधार पे लेता था, कैमरा भी फ़ोन का माइक, कैमरा भी फ़ोन से, और बस सब स्टार्ट कर दिया बस। एंड देन दैट्स हाउ इट ऑल वेंट ऑन। Yeah, it's gradual steps that you have to take. एकदम से jump नहीं मार सकते। Like for their business ज़रूरी था वो vans की investment करना क्योंकि that was their product. But like अगर right now if I don't have the need, then I don't have to invest 50 lakh rupees and like keep my money there stuck in that business for that. Yeah, मतलब ये आपको even in any business मुझे जो feel होता है कि you need to have multiple streams of revenue for any business, कि एक ही stream of revenue अगर business का है ना तो वो भी एक टाइम पे अगर वो ड्राइव हो गया, diversify करना पड़ता है किसी पॉइंट पे, क्योंकि आप सारे साल सारी जिंदगी एक ही प्रोडक्ट पे तो नहीं रिलाई करोगे, एक ही सर्विस पे नहीं करोगे। You need to keep upping your game. चेंजिंग सो फास्ट। अब कोविड आ गया तो सारे बिजनेस के स्ट्रक्चर्स चेंज हो गए। इफ यू आर नॉट अडेप्टेबल इनफ तो फिर आपके लगे लग तो रहे भाई आपके, ये तो है, ऊपर से नीचे तक लग ही जा रहे बस। मगर यू नो लाइफ में काफ़ी यू नो कोविड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, मगर ये कि ठोकर लगती है
और फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। जो बात तो आपकी नज़र में ऐसी कोई ठोकर आपको लगी कि जिससे आपने ऐसा लग रहा था एक पॉइंट पे यार इससे अच्छा छोड़ ही दूं मैं ये काम? Well, small struggles or hurdles तो हर businesses में होते हैं. So if you don't have the heart to bear with the struggles that a business has every day, then maybe you shouldn't be doing it. I'm not like demotivating anybody, but you need to have a very strong foot in your business. So जैसे कि for my business personally, it grew over this 1 year because of the pandemic. Because people were home, they wanted to order, they wanted something safe, something clean. Restaurants बंद थे, option नहीं था, limited home based पे मतलब convert आपको कर वही दिया. आपके तो यही है ना कि आपने किसी के लिए प्रॉब्लम आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई आपके लिए. Yeah. So but for that it's not like कि hurdles नहीं आते, ठीक है. Daily clientele यहाँ का बहुत tough है, no doubt. Women also specifically they want good proper stuff because they make these things at home and they expect the same if they're giving you money. So for that, like my clients are mainly women, so that's why I'm like talking about them. But in fact, like some of them give you a really hard time at times. They want the best top-notch thing in a very limited price. And ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से. ये हर यहाँ चीज का को issue है. मतलब सबको चाहिए सब कुछ Like और देना मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं. करना पड़ता है कि आपको इतनी अच्छी चीज मिल रही है, मार्केट में इतने की है, ये एक्सप्लेन करना पड़ता है. मतलब ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है. एक प्रॉब्लम की है, मुझे ये चीज चाहिए भाई. आपको लोग कस्टमर यहाँ का समझने के लिए तैयार नहीं है कि भाई देयर इज अ पर्टिकुलर कॉस्ट फॉर एनीथिंग दैट यू वांट. But I think it's also like once I started off myself, पहले मेरा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा इन लोगों की तरह होता था. But once you're there and you know how it feels, so you start becoming more considerate towards other business owners कि भाई delivery charges pay करने होते हैं. You have to pay certain things. क्वालिटी मिल रही है तो प्राइस भी देनी होती है, मुफ्त का नहीं दे सकते. तो आप लोगों को कैसा लगता है? आपने ठोकर की बात की ना, ये फैजान भाई का ये जो हेयर स्टाइल है ये ऐसे नहीं आया है. ये ठोकरे लग रखे हैं. ये बाल चले गए जो वापस नहीं आ रहे ठोकरे. अच्छा, धूप में आपने बाल उड़ाए नहीं है असल में. धूप में नहीं, ये धुएं में बाल उड़ाते हैं. तो ये ठोकरे यही बेहतर बताएगा कि क्या क्या ठोकरे लगी है. अच्छा, फर्स्ट जब आपने कहा कि डीमोटिवेट हो गए, काम नहीं करना, तो बिल्कुल स्टार्ट में अब काम शुरू नहीं हुआ था. हमने वैन्स बेसिकली इसके मामू से इंपोर्ट करवाई थी, इनके मामू का शोरूम. तो हमने वहां से इंपोर्ट करवा ली. मतलब प्रोसेस में थी 30-40 डेज लगते हैं. देख के बोला मामू देखे. मामू बड़ा मान जाएंगे. तो उस प्रोसेस में थी, तो ये आ रही थी, इतना पता था. तो अब आईबीए एंटर होने के लिए एक पास चाहिए होता है जिसका हमें नहीं पता था. अच्छा, मुझे अब पता चला है. नहीं, वो मतलब वो ट्रांसपोर्ट कमर्शियल के लिए अच्छा. एक वो पास चाहिए होता है जो सबको बनाना होता है. और उस वक्त हमें पता ही नहीं था, और मतलब गाड़ियां आ गई थी और लिटरली 4-5 दिन में हमें स्टार्ट करना था. तो हमें पता चला अच्छा ये पास भी कोई चीज है. बोला चलो ठीक है, आईबी के पास जाते हैं. आईबी बोलते हैं कि भाई हम आपके ही वेंचर हैं, तो बात करते हैं, देखते हैं क्या होता है. यार मुझे वैसे लग रहा है ये स्टोरी अच्छी नोट पे एंड नहीं होने वाली, क्योंकि आईबीएस से मैंने कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं किया है. फिल्मी आपको वाइब्स आएंगे. हाँ, ये मुझे लग रहा है ये स्टोरी बहुत खराब होने वाली है एंड में अभी. क्लाइमेक्स वाला पूरा हुआ है. अच्छा, फिर हम लोग गए सीडी के पास. हमने बोला कि हम तो खैर आईबीए से रजिस्टर्ड बिजनेस, तो आप बताएं, मतलब एक फॉर्म पे आईबीए का स्टैम्प चाहिए तो वो सिग्नेचर चाहिए होती है. उन्होंने बोला आप सिक्योरिटी ऑफिस जाएं. हमें नहीं पता था सिक्योरिटी ऑफिस का क्या सीन है. आईबीए में एग्जिस्ट भी करता है. पता चला. हम गए वहां पे. पहले तो उन्होंने बोला कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाओ. ट्रांसपोर्ट ऑफिस ने बोला सिक्योरिटी ऑफिस जाओ. सिक्योरिटी ऑफिस गए तो वहां पे एक शख्स थे, तो उनके पास गए हम. सर कि ये हमारा प्रपोजल है और ये सीन है, हम वो ये चाहिए आपकी, वो आप अलाउ करेंगे तो हम जाके दिखाएंगे और हमें स्टैम्प चाहिए. तो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में, मासूमाना अंदाज में हमने बोला कि ये मेरा काम नहीं है, रजिस्ट्रार के पास जाओ. अब हम फिर सीडी हमने बोला सर अब क्या करें, हम ये 3 जगहों से घूम कर आगे फिर से आपके पास. इसमें एक चीज ये हुई थी कि रजिस्ट्रार ने हमें कहा था कि तुम चले जाओ, सिक्योरिटी वाले को कन्विंस कर लो, मान जाएंगे, वो अच्छे आदमी है. हम गए, हमने कहा भाई अच्छे आदमी होंगे. सर उन्होंने आपके पास भेजा है. उन्होंने कहा वो क्या, उससे भी बड़ा कोई भेजेगा तो भी साइन नहीं करूंगा. हमने कहा सर वजह तो बताएं. बोला वजह ये है कि तुम लोग आईबीए के बच्चे वैन चला रहे हो,
कल परसों कुछ भी हरासमेंट हो गई, नाम मेरे ऊपर आएगा कि मैंने परमिशन दी थी, तो मैं अपने आप को इस चीज में नहीं डालूंगा। अब 8 ये हम बात कर रहे हैं 8 जनवरी की, 16 से हमें ऑपरेशनल होना था, अगले दिन वीकेंड था और वीकेंड के बाद 3 दिन का तो पास का प्रोसीजर था। तो अगर हम कैलकुलेशन से चले तो उस दिन हमारा काम नहीं होता, तो 16 को एट एनी कॉज हम ऑपरेशनल हो ही नहीं सकते थे। अब हम सिर्फ फंस रहे थे एक पास के लिए जिसमें हमें सिग्नेचर चाहिए था किसी दूसरे बंदे से। तो फिर यही हुआ, फिर मतलब हम लोग टोटली डिसाइड हो गए थे, हमें कुछ आइडिया नहीं था। आदम जी के बाहर और आदम जी नहीं वो एनरोलमेंट के लिए जैसे खड़े होते हैं ना लोग फौजी के बाहर, उसके बाहर बैठ के लिटरली 5 मिनट हम खामोशी में बैठे। हम बैठे क्या मतलब हम लोग बैठे, फिर मैंने फैजान को कहा भाई एक नहीं वो फिल्मी अंदर का जाग जाता है, हम तो वैसे ही देसी लोग हैं सारे। तो मैंने फैजान को कहा भाई करना है तो जान मारते हैं वरना खत्म करता है। फिर अंदर का वो भी जाग गया, बाहर गए, एक पी, थोड़ा दिमाग खुला, फिर सीडी से गए और वे आउट निकल गया। सो एनीवेज पूरी कॉन्वर्सेशन का मकसद ये था कि अब हम भी ये सोचते हैं कि हमें हमारे अंदर पता नहीं उस वक्त कैसे हिम्मत आई थी और वो रास्ते हमारे कैसे बने कि सीडी में जान पहचान निकल आई, उन्होंने आगे कन्विंस कर लिया, कन्विंस करके ऐसा हुआ कि अब हमें पास के लिए जाते हैं तो हमारा बस पता है कि ये लोग आएंगे ट्रैवलिंग वाले, इनको साइन करके देना है। तो अगर हम उस वक्त ही ये हो जाता कि नहीं यार ये काम नहीं हो सकता, हमारे बस का नहीं है, तो शायद आज हमारे सामने आप बैठे, हम आपके सामने बैठे भी नहीं होते या आप हमारे सामने। मुझे लगता है मैं भी बैठने नहीं वाला। आई थिंक उनका बिल्कुल स्टार्ट था बिजनेस का, तो अगर तब भी हार मान जाते तो फिर यार मतलब जितना आपकी इन्वेस्टमेंट लगी मुझे तो वो लग रहा था अगर डिसहार्ट हो जाता तो बड़ा डिसहार्ट हो जाता बंदा। तो ये चीज है, ये काम का हिस्सा है। इसके अलावा एक और ऑपरेशनल हुआ है, ऑपरेशनल मतलब आई थिंक रोज के टुकड़े तो आई थिंक हर बिजनेस को अपने समझना चाहिए कि इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। विद इन अ वीक मेरा एक ड्राइवर था, उसने बोला मुझे ऑफ करना है, ठीक है ड्राइवर ने ऑफ कर लिया। अब क्या करें, अब ड्राइवर आया ही नहीं है सुबह। वही अब हम या ये ऑप्शन कर सकते थे कि हम करीम में उनको आने बच्चों को दें या उनको बोले आप खुद से हो, लेकिन वो एक जजमेंट हो जाती है हमारी तरफ से कि ट्रैवलिंग मेट का अगर ड्राइवर नहीं आएगा तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। तो वो जो एक थॉट थी ना वो हमें खत्म करनी थी। तो मैंने फैजान को बोला कि भाई क्लास छोड़ते हैं चल। my friend went into the van. She said Arshad was driving us one day, and I was like, wow, this is the type of energy we need to give it to you. हुआ है कि हम क्लासेस मिस करके टीचर को भी जाके जस्टिफिकेशन देते थे, सर वैन चला रहा था। तो फिर उनको समझाना पड़ता था कि भाई वैन क्या है। अक्सर ये हुआ है कि बच्चों मतलब लोगों को ये बड़ा वो होता है कि यार मैं ये काम कर लूं, टॉकिंग अबाउट मनाइल, मतलब एक इवेंट है, कोई कॉर्पोरेट इवेंट है यार, तो आपको तो करना है भाई, कोई छोटा बड़ा काम नहीं होता। दिस इज योर ओन थिंग। अगर आपको है ना इवेंट में आपको अगर वेटर बनाकर भी रहना है तो आपको बनना पड़ेगा। इट्स योर ओन थिंग, लाइक यू हैव टू डू। हमने ट्रे पका के ड्रिंक्स भी सर्व किए हैं, हमने तंबू भी खुद लगाए हैं, हमने चेयर्स भी खुद उठाई हैं, और उस वक्त कोई नहीं बोलता भाई मैडम आप बैठ जाएं हम कर लेते हैं। उस वक्त सबको कुछ हर चीज बस यही बात, ये कि हमारा एक डिलेमा है कि कि यार हम ये काम नहीं करते यार, हम ऐसे लोग हैं, हम वैसे लोग हैं, तो फिर वहीं रहते हैं, फिर वो वहीं रह जाते हैं असल में। फिर देखो मिडिल क्लास होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सोच मिडिल क्लास नहीं होनी चाहिए। ये हमेशा समथिंग सोचनी चाहिए। करण जोहर आपको अपनी मूवी लाइक एक तो यहाँ पे लोगों की पॉलिसी है ना, क्लाइंट इज ऑलवेज राइट, योर कस्टमर इज ऑलवेज राइट। यू हैव टू हैव दैट आइडिया इन माइंड, बट इतना नहीं कि आप अपने ऊपर सवार कर लो, लेकिन you have to listen to what they're saying because they're the one paying you. So it's important कि आप उनको उनकी आप व्यू सुने, उनकी आप बातें भी सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर बंदे का टेम्परामेंट अलग है यहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको नहीं पता आगे से कौन आएगा आपके सामने और कैसे बात करेगा। तो it's like walking on glass all the time, no matter how small, how big. So coming to the end of this episode, आप सबसे एक सवाल है, पैसा या पैशन, कैसे शुरू, मतलब व्हाट डू यू से, पैशन या पैसा? पैशन भाई, पैशन में पैसा। Like if you are passionate about something, you will give your 100%, and when you give your 100% and do that hard work, it always comes back to you in some way or the other. या तो either you'll have mental peace that you're doing something you love, and apart from that, if you are hardworking and you give your 100%, the monetary return will also come back in some way or the other. इसमें मेरा एक परसेप्शन है, जो आपने सवाल किया कि ये ब्लैक एंड व्हाइट कुछ नहीं होता, पैसा या पैशन। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते। मैं अगर कोई बंदा मुझे देख रहा है, उसका पैशन एक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है जो कि नहीं चल रही, मैं उसको कभी रेकमेंड नहीं करूंगा पैशन की तरफ जाओ। व्हाई? क्योंकि फॉर एग्जांपल
उसको हो घर तो सकता है- चलाना है ना। घर चलाना है उसको अभी, क्योंकि लाइफ के उस स्टेज में ना हमें भी लगता था यार पैशन हम्म। फॉलो करना है। हम्म, मुझे अपनी 10 पैशन मेरे हर साल जो कि चेंज होते रहते थे, हम्म। सबके साथ होता है। तो अगर एक बंदा सिर्फ अपने पैशन के ऊपर जाएगा कि भाई यही करना है, तो एट द एंड ऑफ द डे पॉसिबल नहीं हो सकता। 4-5 साल बाद वो खुद ही रिग्रेट कर रहा हो। तो हाँ, पैशन की तरफ जाओ, लेकिन एक विद रियलिस्टिक अप्रोच कि भाई Evaluate ये मेरे everything. गोल्स हैं जो मुझे अचीव करने हैं। नहीं हुआ देन आई विल ऑब्वियसली स्विच द फील्ड, या मैं किसी और चीज में जाऊंगा। सो या और अगर सिर्फ पैसे के पीछे भागोगे तो आप कभी भी उस चीज में आपकी एक टॉक्सिक चीज हो जाएगी आपके साथ, और ना आप अपने साथ जस्टिफाई कर रहे होगे, ना अपने जो भी आपकी फील्ड ऑफ बिजनेस है या अपनी वो जॉब है उसके साथ। तो हाँ, दोनों चीजें आप मेजर करो, प्रोस कॉन्स दोनों के देखो, एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू ऑप्ट फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड और अनदर। I feel they go hand in hand, and it also depends what part are you there, like in your life. If I'm still in uni, I still have to study and do my degree. They're I not feel in इस uni, age so पे they've people moved can on from the experiment. passion True, part true. to the Yeah. earning part, where they have to earn because they have to establish themselves. So it varies from person to person. हर किसी पे generalize नहीं हो सकता. लेकिन आई वुड yeah. से कि फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस जो बच्चे यूनिवर्सिटी में ना, उनके लिए तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि एक्सपीरियंस गेन करो, अपने पैशंस के पीछे भागो, क्योंकि जितना अभी आपके पास टाइम है ना, बाद में नहीं होगा। आपके बीवी बच्चे खर्चे ये सारी चीजें होंगी। व्हेन यू हैव द टाइम टू देख रहे हैं ना फैजान भाई। हाँ, व्हेन यू हैव द टाइम टू सोच रहे आप, एक्सपेरिमेंट जो तो बाल है वो करो। भी चले जाए। Yeah, thank you all of you to have you on this special episode for startups, and I hope कि हम और IB के startups को cover कर सके in general, and to have you all, thank you for Thank you for coming. having us. Yes. And I hope you like the episode, and hope who is watching this episode you can be excited, motivated to start your own startup. That's Thank it. you. See you next time.